میری اطلاع میں بات لائی گئی ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ خاموشی سے پاکستان میں شروع کیا گیا ہے. اگر آپ خاموشی سے کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی اطلاع ملتی ہے. کل بہت اچھا ہوا، جنازوں سے پہلے، شہداء کے جنازوں سے پہلے مولانا ناظر تقوی، مولانا شہنشاہ نقوی اور دوسرے علماء کی محنت سے اسیروں کو رہا کیا گیا. میں آئی ایم تھینکفل کہ ہمارے اسیروں کو فوراً رہا کیا گیا، لیکن ایف آئی آرز کو اگر ختم نہیں کی گئی. دیکھیں یہ 40 دن ہمارے بہت حساس ہیں. ہم آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، اور انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنائیں گے تو پوری قوم ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینی کوشچن پلیز؟ آپ کے جو کارکن ہیں وہ آپ کو کیوں بات ہے ایک ہی جو ہوتے ہیں آپ لوگ جو آپ کی کوریج کرتے ہیں اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ کل دیکھتے ہوا. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نہیں ایک تو میں مائنڈ نہیں کریں گے، میں ایک ان آفیشیل محبت کا جملہ کہوں، ہمارے لوگ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں آپ بھی ہیلپ کریں، ہم بھی ڈھونڈیں گے. آپ نے شکایت کی، ہم آپ کی شکایت کو نوٹ کرتے ہیں. مانتا ہوں نہیں دیکھیں مائنڈ نہیں کریں. میں ایک بات کہوں، لوگ ہوتے ہیں جو اپنا غصہ نکالتے ہیں. کل کے واقعے میں اگر کچھ ہوا ہے ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، دیکھیں اگر کسی کا ایسا نقصان ہوا ہے، کسی کا I beg your pardon، اگر کسی کا ایسا نقصان ہوا ہے، میں حاضر ہوں، میں اس کے نقصان کو جبران کروں گا جتنا حد تک میرے لیے ممکن ہے، اور میں معذرت بھی کرتا ہوں. جیسے کہ یہ آپ لوگ ہمارے ہیں، ہم ہیں، اور اگر ایسا کوئی نقصان ہوا ہے، میں ٹیلی ویژن کے سامنے، اس کے سامنے آپ کو اطمینان دلاتا ہوں جس حد تک میرے لیے علامہ سعید نقوی صاحب کی طرف سے ممکن ہوگا کروں. اور آئندہ ایسی کوئی چیز ہو آپ کچھ تصویر ہمیں بھیج دیجیے تاکہ ہمارا بالکل یہ اصول ہم نہ دیکھیں. میں نے چند سال پہلے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ ایک احترام کے دائرے میں. اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے ہم آپ کا جبران کرنے کی کوشش کریں گے. پلیز میں بھی ہوں، مولانا اقبال بھی ہیں، میری پوری سندھ کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی، کراچی ڈویژن ہے، جعفر ایوب ہے، علماء ہیں. میں ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ اس معاملے میں. شکریہ آپ نے پن پوائنٹ کیا. کوئی اور پوائنٹ؟ جی ایک جملہ کہہ دوں، اس وقت گلگت میں دھرنا جاری ہے، اور گلگت کے دھرنے کو ہم پوری طرح سے اون کرتے ہیں، اور اگر فوری طور پر اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنا لائیں بلا. پولیس نے موقع دکھا دیا تھا کہ جو فائرنگ ہوئی تھی وہ ہم نے نہیں کی. تو آپ احتیاط میں کن لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور پولیس کے طالبان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فائرنگ کی ہے وہ کانٹریکٹ میں مطلب پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں. تو آپ احتیاط میں کن لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں فرشتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ میں گولیاں نکال دیں نا جنازوں سے. آپ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کیا گیا. آپ اگر آپ سے مطلب پوسٹ مارٹم ہوتی، آپ کو گولیوں سے پتہ چل جاتا. یہ سیکورٹی گارڈ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پولیس کی گولیاں الگ ہیں، سیکورٹی. میں بھی تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، پوسٹ مارٹم دیکھتا رہا ہوں نا. شیل الگ ہوتا ہے، اور امپورٹڈ لوگوں کی سنیپر فائرنگ الگ ہوتی ہے. بی شیور امپورٹڈ ہوں گے تو ان کے خلاف بھی ہم ایف آئی آر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں ایک سوال بی شیور 100% ہمارے لوگ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اسلحہ لے کے نکلیں. کیوں؟ ٹھیک ہے، میرے والد کا اگر انتقال ہو جائے
तो मेरे दोस्त असलहा लेके निकलेंगे या गम में मेरे साथ चलेंगे? आई वॉन्ट टू आस्क यू वन पॉइंट, आप में से कोई अमेरिकन, थोड़ा मैं इस तरह बात कर सकता हूँ, सहाफत के उसूल के खिलाफ तो नहीं है, एनीवन हु हैज गॉन टू अमेरिकन काउंसुलेट इन कराची, ओके, दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है, उस दरवाजे को आप, वो नहीं जुल्करनैन, हजरत जुल्करनैन ने जो डैम बनाया था ना, जाके देख लीजिए, उस दरवाजे को अगर आप हाथ लगाएंगे ना, यू विल फील इट, हु ओपन द डोर, हु लेट देम इन, ओके, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। जीआईटी बनी है ना, वी स्टैंड, हम स्टैंड कर रहे हैं वहां पर। जीआईटी में अगर हमारा कोई शख्स साबित होता है कि वो असला लेकर गया है और प्रूफ आते हैं, हम फिर अपना स्टैंड अपनी जगह पर बाकी रखेंगे। लेकिन अगर साबित हुआ कि 79 लोगों पर, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान में तो 16 साल का बच्चा असला लेकर नहीं गया था, 14 इयर्स बॉय, फिर शाम को रेंजर्स ने, एक रेंजर को यहाँ पत्थर लगा तो वो गुस्से में आया, अरे रेंजर तुम लोगों को तरबियत दी गई है, हमारी, उसने पहले हवाई फायरिंग की, उसके बाद डायरेक्ट हमारी खवातीन पे फायरिंग की, तुम्हारी माँ बहन नहीं है जो हमारी माँ बहन बेटियों पर डायरेक्ट फायरिंग की है और पैरों पे और लगी, लेकिन हमारे शोहदा पर तो डायरेक्ट फायरिंग की गई। आपकी बात का जवाब ये है, वी स्टैंड विद प्रॉपर जीआईटी रिपोर्ट। नेक्स्ट, आप जो है वो उनको, जो उनके साथ मुजाहिदीन के साथ हुआ है उसको डिफेंड कर रहे हैं और लाजमी बात है बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपकी क़यादत उस वक्त क्यों नहीं मौजूद थी जब वो लोग पहुंचे थे? तो आप जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग जो केस को प्लीज कर रहे हैं उनका वहां होना जरूर। जैसे जैसे चीजें होती गई लोग पहुंचते गए हैं, मैं अकेली की बात नहीं कर रहा, मेरी टीम के लोग, ढूंढिए आप अपनी वीडियोस में कुछ। अब मैं तो अबा लिबास में भी नहीं था, शायद आप मुझे पहचान भी नहीं सकते थे, ठीक है, क्यों एक गम के आलम में निकले हैं, वही सहरी खाई और हमारे अक्सर लोग मौजूद थे। अगर मौका होगा तो हम आपको वीडियोस बताएंगे, और हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पहला फायर आया, हाँ मौलाना मेरे दोस्त, हाँ पहला फायर आया तो डायरेक्ट जब अच्छा वो मेरा नोहा खान जो नोहा पढ़ रहा था, जब गोली चली तो फिर वाई, आपके पास आंसू गैस नहीं थे, आपके पास रबर बुलेट्स नहीं, आपके पास वोट। मुझे एक जिम्मेदार ने कहा कि हमें ख्याल नहीं रहा, आई डोंट वांट टू कोट दैट जिम्मेदार, वो बेचारे, हमें ये हो गया, पुलिस नहीं पहुंची और ये नहीं हुआ। भाई आप सिक्योरिटी करें, आप, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता प्रेस सामने, फिर कल को कोई और हेडिंग लग जाएगी। बहरहाल हम स्टैंड लेते हैं, हमें जेआईटी चाहिए। अभी तो गुल प्लाजा की कहानियां सुन रहे हैं ना आप, सॉरी ना मैं थोड़ा अलग निकल रहा हूं, अब आपको पता चले गुल प्लाजा में क्या हुआ। याद है पहले 3 दिन 4 दिन में एक रिपोर्ट बन गई थी। ये मजाक किया जा रहा है अवाम से, जो बिजली और पानी और गैस, कराची के रोडों का हाल देखें, इन मुश्किलात में फंसे हुए थे, अब एक नई मुश्किल में फंसा दिया, जिससे जो गिरफ्तारी हो रही है हम स्टैंड लेंगे। जी भाई, कलम कराची में कलम भी करता रहते हैं, ठीक है, वाक़या हुआ जो हम देख रहे थे, उसके बाद जो इरादे का मामला था उस पर तमाम, मैं देखा कि तमाम आपकी जमातें एक से भाई अमन के साथ इरादा हो गया और कोई ऐसा ना उसका वाक़या पेश नहीं है। लेकिन ज़रा सा हम बात थोड़ा सा जानते हैं, कुछ महीने पहले बच्चे ने प्रोग्राम में एक वाक़या हुआ था लाइव में, तो वहाँ के आपके तीनों मरकज़ी जो लाइव ने किया जमातों के सेटलाइट और बाथरूम या खाली मकते से, तो वह वहीं के उनकी राय है क्या राजा नासिर पास तो वो क्या वो भी एक पेज पर कहते हैं, जानने को मैं देखा कि वो इस्लामाबाद के वाक़े में देखा कि आई वॉज देयर, मैं रात 2 बजे इस्लामाबाद पहुंच गया था मुल्तान से, मेरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। मरकज़ी जनाजे में मैं गया था, पूरी टीम को लेकर गया था, कायदे मोहतरम की तरफ गया था, फिर ज़ख्मियों के पास गए, वहाँ पर भी हम एक पेज थे। तीसरे दिन मजलिस हुई, हम गए, हम इन मामलात में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वी आर ऑन वन पेज इंशाल्लाह। और आगे भी आपको मैं एक बात करूं, मेरे जिम्मेदारों ने आप लोगों के लिए कोई रिफ्रेशमेंट का इंतजाम नहीं किया है, बेतवज्जुही हो गई है, आई एम रियली सॉरी जी, वरना चलें कहीं साथ चल के एक
डिनर करते हैं, ताकि क्योंकि आप लोगों ने इफ्तार की होगी, खाना नहीं खाया होगा और आप लोग आ गए, तो इसको देख। यस प्लीज। और मैं तकल्लुफ से काम नहीं लेता। आपने फरिश्तों का जिक्र किया और फरिश्तों के हवाले से एक हमारे मीडिया चैनल को कल रात में हैक किया गया और मुख्तलिफ चैनल जियो न्यूज़ और एयरवाई न्यूज़ पे एक लिखा गया जो कि फौज के खिलाफ था। और क्या कहेंगे दोस्तों, किस तरीके से आप देखेंगे कि दुश्मन नासिर इस तरीके के वाक़यात जो है वो जब ऐसे इंसिडेंट हो तो उसमें इन्वॉल्व हो। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किस चीज़ से की? मेरा मुल्क है, मेरी जान है, ये पाक अफवाज भी मेरी जान है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मेरे जान है। ये याद है मैंने उस मरकज़ी प्रोग्राम में जहाँ पर उलमा 6000 उलमा थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मोहतरम CDF थे, मैंने क्या कहा था? ये मेरा मुल्क है। लेकिन इस वक्त तकफीरी अनासिर जो है ना बन के आगे बढ़ रहे हैं और भी हमें खड़ा होना पड़ा तो हम खड़े होंगे। और ये जो वाक़या हुआ है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट, इट्स गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन। आपको भी होशियार रहना है, हमें भी। देखें, पाकिस्तान जैसी नेमत इस्लामी दुनिया को नहीं मिलेगी और इसके लिए हमें आखिरी सांस तक जिंदा रहते हुए सपोर्ट करना होगा। और मोदी एक जीवन मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग को स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत जवाब मिलेंगे और आपको आइंदा 6 महीने की चीजें भी मिल जाएंगी। और अगर कभी मौका हो तो चाय पे बैठते हैं, फिर बात करेंगे। जी सर प्लीज। पता है क्या है, तरलाई में SHO को मुअत्तल किया था। दीज आर जोक्स, माइंड नहीं करते मेरे अल्फाज को आपस में। दीज आर जोक्स। हम लोग को ना खुश करने के लिए, ओहो खुद IG को मुअत्तल नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, डोंट यू थिंक? सो रहा था IG, वो अगरचे के मेरे मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन वो सो रहा था। और भी कुछ नाम लेने के लिए तैयार हूं कि उनको भी मुअत्तल करो। और ये हमारी जो हुकूमत ने कहा है JIT फॉर्म हुई, लाओ ना, हम भी आएंगे, हम भी सबूत लाएंगे। मेरे पास इतने शैल पड़े हुए हैं कि आपकी सोच। कल भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग थे ना। ये छोटे मोटे लोगों को आप मुअत्तल करके ना हमें खुश ना करें। डोंट डाइवर्ट, गो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। हम आपका साथ देंगे, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के रात के डिनर को मैं ड्यू समझता हूँ। एक बार जरा हालात बेहतर हो जाएं, हम आप सबको दावत देंगे। बहुत शुक्रिया।